The PPT is visible. I think the PPT is visible. Hussain sir, Yes, sir. Yes, PPT. sir. Of course, Okay, okay, okay. it's visible. Good evening, everyone. Very good. Good evening, sir. Okay, good evening, everyone. Today, the Hussain sir is with us. We will discuss about the new topic on this research about the research agile. First of all, I want to introduce uh, Hussain sir. Exactly, Hussain sir, we are delighted to welcome you an enriching workshop featuring the esteemed Dr. Muhammad Hussain, an accomplished academicians and practitioner in the field of social work with a distinguished career that began in the lecture in the Rhoda Mystery College of Social Work, Usmania University, Hyderabad. Dr. Hussain currently serves as the assistant professor at the Social Department of Social Work, Institute of Social Sciences, Dr. Bhimrao Ambedkar, Agra University. Drawing upon the more than the decade of the teaching experience, Dr. Hussain holds a master degree in social work from Aligarh Muslim University and has further pursued his academic journey by the obtaining MPhil and PhD degree from Maulana Azad National Urdu University, Hyderabad. His expertise extends beyond the confines of academia as a diverse wealth of experience gained from working with the tribes in central India. A notable aspect of the Dr. Hussain work is his significant contribution to the discourse on the empowerment of Muslim Muslim women through the self-help group in Andhra Pradesh. His research and insights have disseminated through the publications in various reputable national and international journals as well as contributions to the edited books by well-recognized public publishers in country. As a testament of his commitment to the profession, Dr. Hussain is lifetime member of the National Association for the Professional Social Worker in India, NAPSWI. Additionally, he served as the education counselor of the social work at the Indira Gandhi National Open University, IGNOU. This workshop provides the unique opportunity to develop into the wealth of the knowledge and experience that Dr. Muhammad Hussain bring the table. Participants can expect to gain valuable insight into the intricacies of social work, particularly in the context of the empowerment of community of the development. We extend our warmest invitation to the all attendees and we look forward to the stimulating and informative session with the Dr. Muhammad Hussain. Sir, I request kindly deliver your lecture and enlighten us with your inputs and facts. Ji sir, over to you, sir. Thank you. Thank you very much, sir. I'm also very much delighted to be with you for this particular session. And very good evening to all the participants who are taking part in this research methodology workshop. So, as Rafiq Bhai has told many things, but simply I just say that being an Algerian, he has been my senior and I have learned many things from him as well. So, but this is not the platform to discuss all these things. Let me come to the topic which I am going to discuss today with you all. It's a session with, and I suppose that if you have any queries and suggestions, so I welcome that. But I think we should have a proper deliberation in the first phase. Then we will we will take up the queries as well in the second half of the session.
So let us talk about, as you have completed almost 4 days of this workshop. So I am basically going to discuss about basic elements of social research, and briefly we will discuss about the research design. So friends, as a researcher, there are many things which we say that this is the research, that is the research. But being a student of social sciences in general and social work in particular, I would be discussing more about the research in social sciences. So let us talk about the basic elements of social research. As these are visible on the screen, the concepts, constructs, variables, and hypotheses. So let us talk, what do we mean by concepts? Actually, in social science research, we enumerate two sets of terms. These are known as concept and construct. The first set of terms include the term or word which we can point out to an object or the term or word represent. It means there are certain things which we can directly point out. For example, if I say chair, table, house, tree, तो ये सारी चीजें वो चीजें हैं जिनको कि हम इजिली एक हमारे दिमाग में एक पिक्चर आती है जिसको हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इसी तरह से रिसर्च में भी वो टर्म्स जिनको we do not need any further explanation to define these. So these set of terms is known as concept. We do not need any additional explanation for these terms. And at the same time, we can measure these terms. For example, if we say house can be measured in terms of length, width, height. Many things are there. Say, for example, book, tree. So all these things need not further explanation or further deliberation, I can say. So these type of terms are known as concept. In your research, when you will take some words and simply by just uttering those words, you can easily identify and a picture and some kind of image is there before you, and you need not to identify it in some other ways. तो किसी भी तरह से हम इसको सिंपली हम इसको आइडेंटिफाई अगर कर सकते हैं तो वो टर्म्स हमारे कॉन्सेप्ट्स कहलाते हैं रिसर्च के अंदर. एंड इन द सेम वे इफ वी टॉक अबाउट द कॉन्स्ट्रक्ट जो है वो हमारे सेकंड टाइप के टर्म्स होते हैं जिनको हम अपनी रिसर्च में कुछ एडिशनल एक्सप्लेनेशन के साथ डिफाइन करते हैं. जैसे एग्जांपल के तौर पर आपको जरा नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. रफीक भाई कैन, यस, थैंक यू. जैसे नेक्स्ट आपका सेकंड सेट ऑफ टर्म्स जिनको हम कॉन्स्ट्रक्ट कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंटेलिजेंस, अचीवमेंट, क्वालिटी ऑफ लाइफ, लाइफ सेटिस्फैक्शन. इन टर्म्स को हमको अपनी रिसर्च के हिसाब से एक एडिशनल डेफिनेशन की जरूरत सामने आती है. जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्या क्या चीज क्वालिटी ऑफ लाइफ में इंक्लूड कर सकते हैं हम, क्या क्या चीजें क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए जरूरी होती हैं, जिसको हम अपने रिसर्च के टॉपिक के हिसाब से, रिसर्च की जो हमारा एरिया है उसके हिसाब से हम उसको अपने हिसाब से एक वर्किंग डेफिनेशन उसको देकर डिफाइन करते हैं. ये हमारे कॉन्स्ट्रक्ट कहलाते हैं. अब इसके मिसाल के तौर पर आप इसको देख सकते हैं कि जैसे अगर हम देखें सोशल स्टेटस या आपकी लाइफ सेटिस्फैक्शन, तो लाइफ सेटिस्फैक्शन एक सोशल साइंस रिसर्च में बहुत सारे स्केल्स हैं इसको देखने के लिए कि लाइफ सेटिस्फैक्शन क्या होता है. लाइफ सेटिस्फैक्शन डिफर करता है, वेरी करता है फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, फ्रॉम इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल. जैसे लाइफ सेटिस्फैक्शन अगर हम कहें तो नंबर 1 इसमें आता है आदमी का कि उसकी इनकम क्या है, उसके बाद उसकी एजुकेशन क्या है, किस सोशल ग्रुप से वो बिलोंग करता है, क्या उसका सोशल रिकॉग्निशन है, क्या उसके ऑक्यूपेशन है. इन सारी चीजों से मिलकर हम देखते हैं कि लाइफ सेटिस्फैक्शन हमारा
तैयार होता है, जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे कॉन्स्ट्रक्ट हैं। किसी सोशल वर्क या सोशल साइंस रिसर्च को जब आप उसकी वर्किंग डेफिनेशन आप तैयार करते हैं तो वहां पर ये टर्म्स हमारे यूज किए जाते हैं। उनको हम अपनी रिसर्च के हिसाब से जब डिफाइन करते हैं तो वो टर्म्स हमारे कॉन्स्ट्रक्ट कहलाते हैं। इज इट? दूसरी तरफ अगर हम इसको बात करते हैं तो हमारा एक इसमें टर्म आता है लाइफ इन कॉन्सेप्ट और कॉन्स्ट्रक्ट के बाद, जिसको हम कहते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल्स जैसे बहुत सारे हमारे सोशल साइंस रिसर्च करने वाले फ्रेंड्स होंगे, उनको इस चीज का अंदाजा है कि वेरिएबल जैसे टर्म ही अपने आप में इंडिकेट कर रहा है कि जिसकी वैल्यू किसी लेवल पर वेरी करती है, उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं रिसर्च में। और रिसर्च में वेरिएबल्स का मतलब सीधा सीधा हमारा होता है कि ये जैसे दो टाइप के होते हैं। ये भी बहुत क्लियर छोटी सी चीज है, क्योंकि हमें डिस्कस करना है आगे इसमें कैसे कैसे वेरिएबल्स को हम दो तरह के डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा अगर देखा जाए तो वो वेरिएबल जो कि जिसकी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल पर डिपेंड करती हो, किसी दूसरे सेट ऑफ टर्म पर डिपेंड करती है। जैसे अगर हम कहें एजुकेशन और वीमेन एम्पावरमेंट आर रिलेटेड, तो एजुकेशन अगर इसमें हम कहें तो एजुकेशन हमारा होगा कि एजुकेशन एक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और अगर उसकी एम्पावरमेंट की बात करें तो एम्पावरमेंट किस पर डिपेंड कर रहा है? एजुकेशन पर। तो इसका मतलब इसमें दो सेट ऑफ वेरिएबल है, एक डिपेंडेंट वेरिएबल और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे इंटेलिजेंस, इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस एटमॉस्फेयर के साथ अगर हम एसोसिएट करके देखते हैं कि इंटेलिजेंस और एनवायरनमेंट क्या इनके बीच में क्या संबंध है, क्या एसोसिएशन है। तो इस तरह से ये हमारे वेरिएबल्स का जो एक बेसिक कॉन्सेप्ट इसका होता है कि वेरिएबल्स के साथ साथ फिर तीसरी और चौथी चीज होती है हमारी हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस जैसे रिसर्च के लिए हमारे कुछ क्वेश्चंस होते हैं, उन रिसर्च क्वेश्चन का एक टेंटेटिव जो आंसर हमारे पास होते हैं उनको हम हाइपोथेसिस कहते हैं। जैसे कोई भी रिसर्च क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है और उन रिसर्च क्वेश्चन का एक कोई रिसर्च करने से पहले आपके पास जो आंसर होते हैं वो उनको हम हाइपोथेसिस कह सकते हैं, कहते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब simply if we say that hypotheses are the questions which are yet to be tested, और वो टेस्ट किससे किए जाते हैं? आपको डेटा किया जाएगा, डेटा कलेक्ट करने के बाद उसको हम टेस्ट करते हैं, और डेटा कलेक्ट करने के बाद वो डेटा उसकी मदद से हम ये बता सकते हैं कि जो हमने पहले किसी चीज को पहले से डिसाइड किया था, हमारा एक आंसर था। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कहिए कि पॉवर्टी की एक वजह, बहुत सारी वजहें हो सकती हैं, बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन कोई भी वजह अगर आप अपने सामने देखें कि पॉवर्टी इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एजुकेशन, तो ये अभी हमारा एक हाइपोथेटिकल या एजम्पशन है, जिसको हम अभी हाइपोथेसाइज कर रहे हैं कि पॉवर्टी इज बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ एजुकेशन, जिसको के प्रूव करेगी हमारी रिसर्च। रिसर्च का जो हमारा एक डेटा होगा वो इसको साबित करेगा कि हाँ, पॉवर्टी कि एक असली वजह जो है वो एजुकेशन की कमी है या नहीं। तो ये रिसर्च के हमारे वो टेंटेटिव क्वेश्चंस होते हैं। Am I audible? Yes, now you are audible. Am I audible? Yes, you are Yes, audible. बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था कुछ। हाँ जी। Yes, sir, yes, तो sir. अब जैसे अगर हम देखते हैं तो ये हमारे कुछ रिसर्च के बेसिक जो डेफिनेशन हमारी रिसर्च में, जिसको हम अपने, जैसे आपने शायद चूंकि आप रिसर्च के लिए आप लोग बिगनर्स की जैसे बात कही थी रफीक भाई ने कि ये हमारे रिसर्च के वो स्कॉलर्स हैं जो कि अपनी रिसर्च की शुरुआत
बात करने जा रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि मोस्ट ऑफ दी स्कॉलर्स आर फ्रॉम द सोशल साइंस बैकग्राउंड, इज इट? May I know about the background of the scholars who are participating in this discussion? Anyways, तो ये हमारे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, कॉन्स्ट्रक्ट, वेरिएबल और हाइपोथेसिस, जिसको हम बेसिक एलिमेंट्स ऑफ रिसर्च के नाम से भी जानते हैं। अच्छा, इसी बीच में अगर मैं आप लोगों से थोड़ा, चूंकि आप लोग लगभग लास्ट फेज में है इस वर्कशॉप के, मैं पार्टिसिपेंट से थोड़ा सा बीच बीच में ये डिस्कशन करना चाहूंगा कि रिसर्च के बारे में उनकी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग अब तक क्या रही है, ताकि हम उसी हिसाब से थोड़ा सा अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। इससे पहले 4 या 5, रफीक भाई शायद ये 5वां दिन है आज। फोर्थ डे। फोर्थ डे। तो रिसर्च के लिए सबसे पहले, जैसे आपके मैंने 4th डे से पहले रिसर्च के बारे में आपकी कुछ छोटी मोटी जो एक अंडरस्टैंडिंग है, वो अगर आप मुझे 1-1 मिनट में शेयर कर दें तो मैं उसी हिसाब से थोड़ा सा आगे बढ़ूं। इसमें मैं कोशिश करूंगा कि सोशल साइंस रिसर्च पर ही फोकस मेरा रहे। एनी पार्टिसिपेंट? Any of the participant from this group? चलिए, कोई बात नहीं। Now let us come to the designs. क्योंकि एलिमेंट्स के बात ज्यादा नहीं कर पाएंगे हम, क्योंकि इससे हमारा टॉपिक का संबंध ज्यादा नहीं है। अच्छा, इससे पहले चीज और मैं आपसे डिस्कस करता चलूं कि हमारी रिसर्च में अक्सर ये परेशानी आती, जो हम हाइपोथेसिस की बात करते हैं, अभी चूंकि 4th हमारा ये एलिमेंट है, तो मैंने बहुत सारी रिसर्चेस में देखा है इस चीज को बहुत मिसइंटरप्रेट किया जाता है। हाइपोथेसिस के नाम पर लोग अपने अपने पैराग्राफ लिख देते हैं। इज इट हाइपोथेसिस और द ओपिनियन ऑफ एन इंडिविजुअल? जितने जितनी चीजों में उसको लिखा हुआ देखा है मैंने, अक्सर कुछ रिसर्च की थीसिस हमारे पास एजुकेट करने के लिए भी आती हैं, तो उसमें देखा जाए तो लोग, जबकि हाइपोथेसिस हमारा, जैसे मैंने कहा कि 2 वेरिएबल के बीच का एसोसिएशन है और एक ऐसा टेंटेटिव आंसर है जो कि हमारे रिसर्च क्वेश्चन के लिए दे दिया जाता है। अब जैसे हम इसको बात करें कि हाइपोथेसिस की एक्चुअल फॉर्म, hypothesis is simply the association between 2 variables. Say for example, I have given in slide, hypothesis is economic status of family associated with number of children. Is suicide rate higher among people living alone? इसमें आप देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड, हाइपोथेसिस की स्लाइड पर आ जाइए, इससे शायद पहली है वो, स्लाइड नंबर 12, स्लाइड नंबर 12 जी। तो हाइपोथेसिस हमारा 2 वेरिएबल के बीच का एसोसिएशन बताता है, जैसे इकोनॉमिक स्टेटस किसी फैमिली का और नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये इनके बीच में कोई संबंध या कोई रिश्ता या कोई एसोसिएशन है या नहीं। सिंपली अब इसमें एक आपका जो टर्म है, जो एक आपका वेरिएबल है वो डिपेंडेंट है और एक वेरिएबल इसमें आपका इंडिपेंडेंट है। जैसे इकोनॉमिक स्टेटस, इकोनॉमिक स्टेटस कौन सा वेरिएबल यहां पर होगा? इकोनॉमिक स्टेटस किन चीजों से मिलकर बनता है? देखिए, इसमें जो नंबर ऑफ चिल्ड्रन है वो तो वेरी नहीं कर रहा, वो तो फिक्स साइज है। if children are, number of children is fixed 5 4 3 2 whatever, लेकिन उस पर डिपेंड कर रहा है इकोनॉमिक स्टेटस।
तो जो हमारा इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारा होगा इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ द फैमिली। और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि नहीं किसी पर डिपेंड कर रहा, अपने आप में इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, वो हमारा है साइज ऑफ द फैमिली। तो इसी तरह से हम हाइपोथेसिस को अगर देखते हैं तो हमेशा ये दो वेरिएबल के बीच का एसोसिएशन होता है। जैसे इस सुसाइड रेट हायर अमंग पीपल लिविंग अलोन, अब इसमें सुसाइड रेट और सिंगल इंडिविजुअल्स ये हमारे दो वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स अब जिनकी वैल्यू तो वेरी करेगी, तो इसमें सुसाइड रेट हमारा डिपेंडेंट होगा या इंडिपेंडेंट होगा, ये हमको देखना होगा। हमारा जो स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल है वो भी देखना पड़ेगा कि वो इंडिपेंडेंट है या डिपेंडेंट है। जैसे सुसाइड रेट किस पर वेरी कर रहा है? सुसाइड रेट डिपेंड कर रहा है हमारा स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल, कि इंडिविजुअल अलोन है, अपनी लाइफ गुजार रहा है या एक मैरिड लाइफ गुजार रहा है। तो सुसाइड रेट इज डिपेंडिंग अपॉन द स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल, वेदर इंडिविजुअल इज सिंगल और इंडिविजुअल इज मैरिड। तो इसका मतलब जो हमारा इसमें डिपेंड करने वाला वेरिएबल है वो सुसाइड रेट है। जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो हमारा स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल, चाहे वो मैरिड है या सिंगल है। तो इस तरह के जो हमारे एसोसिएशन होते हैं दो वेरिएबल के बीच के, वो हाइपोथेसिस कहलाते हैं, राइट। अब इसी में इन हाइपोथेसिस को आगे देखा जाए तो इसको हम दो तरह से इनको और फर्दर डिफाइन करते हैं कि ये अगर इस हाइपोथेसिस को किसी थ्योरी से ड्राइव किया गया है तो उसको हम कहते हैं वर्किंग हाइपोथेसिस या रिसर्च हाइपोथेसिस। द हाइपोथेसिस ड्राइव फ्रॉम ए थ्योरी इज टर्म्ड एज रिसर्च हाइपोथेसिस और वर्किंग हाइपोथेसिस, जिसको H1 के नाम से हम डिनोट करते हैं। अब इसी तरह इसको आगे इसके एग्जाम्पल देखिए। रिच पीपल हैव लार्जर फैमिलीज देन डू पुअर। रिच पीपल हैव लार्जर फैमिलीज देन डू पुअर, इसका मतलब सीधा सीधा ये हुआ कि इन दो के बीच में एक एसोसिएशन, एक रिलेशनशिप देखने की कोशिश की गई है कि जो अमीर लोग हैं उनकी फैमिली गरीब लोगों की फैमिली के मुकाबले बड़ी होती है। लेकिन ये दोनों के बीच का एसोसिएशन बता करके ये फाइनल नहीं कर रहे हैं हम कि ये बात सही है, इज इट नॉट करेक्ट या इज इट करेक्ट। This will be decided after the data will be collected and the analysis of data and the findings of the research. This will be clear when the evidences from the research or from the field or from the data will be available, then it will be proved कि ये बात हमारी सही है या गलत है। जैसे दूसरा कहा गया सुसाइड रेट इज हायर अमंग सिंगल्स देन मैरिड इंडिविजुअल्स। अब ये हमने हाइपोथेसाइज कर लिया, इस चीज को हमने एज्यूम कर लिया, लेकिन दिस विल बी रिजेक्टेड और एक्सेप्टेड इन द लेटर हाफ ऑफ द रिसर्च व्हेन द रिसर्च विल बी डन और व्हेन द डेटा विल बी कलेक्टेड, डेटा विल बी एनालाइज्ड एंड द फाइंडिंग्स विल टेल दैट दिस हाइपोथेसिस इज ट्रू और नॉट। तो इस तरह के हाइपोथेसिस को हम जो दो वेरिएबल का एसोसिएशन दिखाता है, दैट हाइपोथेसिस इज नोन एज रिसर्च हाइपोथेसिस और वर्किंग हाइपोथेसिस। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइपोथेसिस व्हिच इज नोन एज नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस का मतलब when there is no relationship between the variables. In the same way we denote it with H0. Here was H1, it is called H0. Examples of null hypothesis: economic status and size of the family are not associated, means it shows negative relationship, means no relationship, इसके बीच में कोई संबंध ये बताता नहीं कि इन दोनों के बीच में कोई संबंध नहीं है ही नहीं। सुसाइड रेट एंड मैरिटल स्टेटस आर नॉट एसोसिएटेड, ये भी जैसे पिछले में हम दिखा रहे हैं कि सुसाइड रेट और स्टेटस ऑफ द इंडिविजुअल आर एसोसिएटेड, हियर इट इज शोइंग सुसाइड रेट एंड मैरिटल स्टेटस आर नॉट एसोसिएटेड। तो इस तरह
सर जी जी। यू आर सर यू आर म्यूट सर। नहीं नहीं, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था सर। Actually, sir, इज इट? अभी if there is a दिख नहीं पा रहा there is है। a there is a internet connecting problem, please पार्टिसिपेंट्स आर एबल टू। हाँ तो आप अपना सर वो उसका वीडियो बंद कर दिए तो थोड़ा सा सही रहेगा। ओके, आई विल स्टॉप द वीडियो। अदर पार्टिसिपेंट्स आर एबल टू। हेलो, एम आई ऑडिबल? Yes, sir. ओके ओके, थैंक यू। एंड all the participants are able to visualize the screen. Yes, sir. Let it be. Yes, sir. Okay. Now coming to the sources of hypothesis. हाइपोथेसिस के क्या क्या सोर्सेज हो सकते हैं? कुछ थियरीज ऑलरेडी जो दे रखी होती हैं वो हमारे हाइपोथेसिस के सोर्स होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक इमाइल एंड दुर्खीम की थ्योरी है, सोशियोलॉजिस्ट थे बहुत बड़े। ही सेड दैट women commit less suicide rather men, or in the other ways we can say men commit more suicide than women। ये एक थ्योरी है। इस थ्योरी को हम एक एस्टैब्लिश थ्योरी है, उसके पीछे उन्होंने बहुत सारे रीजंस दिए। बेसिक रीजन था कि women have Sir, you are not audible. Hussain sir, are you here? हाँ सर सर एक्चुअली एक मिनट का टाइम दीजिए मुझे, मैं कनेक्ट कर लूँ इसका हॉटस्पॉट। बार बार अच्छा शॉर्ट हो जा रहा है ये। अच्छा अच्छा ओके सर जी ओके बस एक मिनट का टाइम। ओके सर ओके। एक मिनट।
पता नहीं चलता रहना चाहिए। 10 मिनट का 15 मिनट नीचे आप ये कर लो 10 मिनट ठीक में ठीक ठीक ये ठीक। मैं स्टैंड ले आऊँ। Yes, sir. I'm sorry, sir, for that interruption. Is it okay now? Am I audible? Yes, 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 yes. Sorry for the interruption. I'm so sorry. So now you can open your camera. No, Okay, there is no problem. okay. Is it open now? Start. I have started my video as well. Okay. So we were talking about the sources of hypothesis. Source means, as I told you, theories. Theories means we were discussing about the very profound theory given by Emile Durkheim. He said that women commit less suicide rather men. He further says that this is the main one of the reasons for this is women have more ways to ventilate out their feelings by crying, by something else. लेकिन आदमी जो है वो उसके हिसाब से इतना उनके पास फीलिंग्स को वेंटिलेट आउट करने के ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, तो इसलिए वो सुसाइड कर लेते हैं। इसी तरह से दूसरी थ्योरी इसमें दी जाती है अबाउट द कैथोलिक एंड प्रोटेस्टेंट इन द क्रिश्चियन कम्युनिटी। देयर आर टू prominent sects, one is Catholic and another is Protestant. He further says that Catholic are more religious rather Protestant. तो उन्होंने बताया कि कैथोलिक की अपेक्षा या कैथोलिक के मुकाबले प्रोटेस्टेंट जो है वो ज्यादा सुसाइड करते हैं, या उसको दूसरी तरह से कहें कि प्रोटेस्टेंट जो है वो ज्यादा सुसाइड करते हैं, कैथोलिक उतना नहीं करते, वो कम करते हैं। उसकी वजह उन्होंने बताई कि जब वो ज्यादा रिलीजियस होते हैं तो रिलीजियस ऑब्लिगेशन उनके ऊपर ज्यादा लागू होती हैं और वो सोचते हैं कि जो आत्महत्या या सुसाइड करने का जो अंजाम है वो हमारे दूसरे दुनिया में भगवान के यहाँ या खुदा के यहाँ उसका अंजाम अच्छा नहीं है, इसलिए वो अपने सुसाइड को या सुसाइड कमिट नहीं करते या कम करते हैं। दूसरी तरफ इनको थ्योरीज के अलावा अवेलेबल लिटरेचर से भी हाइपोथेसिस को हम ड्रॉ करते हैं। जो लिटरेचर किसी सब्जेक्ट के बारे में अवेलेबल होता है उसके बेसिस पर हम इन हाइपोथेसिस को ड्रॉ करते हैं। तीसरा होता है पर्सनल एक्सपीरियंसेस। जो इंडिविजुअल के पर्सनल एक्सपीरियंसेस होते हैं उनके बेसिस पर भी हम हाइपोथेसिस को ड्रॉ करते हैं या हाइपोथेसिस हम फ्रेम करते हैं। चौथा होता है इसमें फाइंडिंग्स ऑफ द अदर स्टडीज। जो कुछ स्टडीज पहले किसी फील्ड में हो रखी हैं उनकी फाइंडिंग्स भी हमें बताती हैं कि हाँ हम किसी हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट कर सकते हैं या उन फाइंडिंग्स की मदद से हम एक कंक्लूजन पर पहुंच सकते हैं, एक स्टेटमेंट को हम ड्रॉ कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं कि ये भी हमारा इस तरह से हाइपोथेसिस बन सकता है। नेक्स्ट इसके बाद आता है इसके कुछ सोर्सेस के अलावा कि ये जो इसके कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हाइपोथेसिस के, वो है एम्पिरिकली टेस्टेबल। नेक्स्ट स्लाइड देख लीजिए। एम्पिरिकली टेस्टेबल मींस उन हाइपोथेसिस को हम रिसर्च के डेटा की मदद से टेस्ट कर सकते हैं। जैसे हमने एक हाइपोथेसिस अभी जैसे पिछला देखा कि जो सुसाइड है वो सिंगल इंडिविजुअल्स में ज्यादा होता है रादर जो मैरिड इंडिविजुअल्स हैं उनमें। तो इसको हम डेटा की मदद से ये वेरीफाई कर सकते हैं, ये टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ ये हाइपोथेसिस हमारा सही है, ये प्रूव सही होता है या डिसप्रूव होता है। तो एम्पेरिकली टेस्टेबल होने चाहिए कि कोई डेटा अगर हम
इंडिविजुअल्स जो कि मैरिड हैं और सिंगल हैं, उन दोनों से डेटा कलेक्ट करें और उनकी टेंडेंसी को अगर एनालाइज करें, देखें, तो पता चलेगा हमको कि हाँ ये चीज हमारी, इसको हम साबित कर सकते हैं, इसको वेरीफाई कर सकते हैं फर्दर हम डेटा की मदद से कि ये बात सही थी या ये बात गलत है। दोनों तरफ, किसी भी तरफ वो जा सकती है। इट मीन्स उसको एम्पेरिकली, उसको हम न्यूमेरिकली प्रूव कर सकते हैं। मस्ट नॉट बी अ मॉरल जजमेंट। हाइपोथेसिस कोई मॉरल, किसी भी कोई मॉरल जजमेंट कभी नहीं हो सकता। से फॉर एग्जाम्पल, ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये एक मॉरल जजमेंट है, इसको हम हाइपोथेसिस नहीं बना सकते। इस तरह के मॉरल जजमेंट को हम, या जैसे कहते हैं किसी चीज को कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, फ्रेंडशिप फॉर एवर, दीज टाइप ऑफ थिंग्स कैन नॉट बी दी हाइपोथेसिस। कॉन्सेप्चुअली क्लियर एंड स्पेसिफिक, जैसे बताया गया कि उस हाइपोथेसिस हमेशा जब दो वेरिएबल से मिलकर बनता है, तो इट मींस वो दो वेरिएबल उसके अंदर क्लियर होने चाहिए। जैसे एजुकेशन एंड एम्पावरमेंट आर एसोसिएटेड, इट मींस दो वेरिएबल इसके अंदर क्लियर है, एक तरफ हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, एक तरफ हम एम्पावरमेंट की बात कर रहे हैं। तो ये कॉन्सेप्चुअली क्लियर और स्पेसिफिक होना जरूरी है। नाउ कमिंग टू द रिसर्च डिजाइन, we are in a little hurry because we lost some of our time. जैसे हम कोई भी अगर एक बिल्डिंग को कंस्ट्रक्शन की, बिल्डिंग के कंस्ट्रक्ट करने की बात करते हैं, तो उसके लिए हमारे पास पहले से उसका नक्शा या उसका ब्लूप्रिंट तैयार होता है। इन द सेम वे, इन द रिसर्च डिजाइन और इन द रिसर्च ऑल्सो वी हैव अ ब्लूप्रिंट इन हैंड, that is known as research design. Research design simply what would be and how it would be, ये हमें बताती कि रिसर्च में हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे। ये सारी चीजों का ब्लूप्रिंट अगर हमारे पास है, तो उस फ्रेम को, उस कंप्लीट पिक्चर को हम रिसर्च डिजाइन कहते हैं कि रिसर्च किस तरह से की जाएगी। और ऐसा नहीं है कि रिसर्च में बीच बीच में टाइम टू टाइम कुछ ऐसे अमेंडमेंट्स, जो कि रिसर्च के प्रोग्रेस करने के साथ साथ हमें उसमें अमेंडमेंट की आवश्यकता होती, तो वो भी हम उसको कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम रिसर्च डिजाइन के साथ साथ, जैसे हम रिसर्च मेथोडोलॉजी की अगर देखते हैं, तो उसमें मेथोडोलॉजी में हमारा सब क्लियर होता है पहले कि ऑब्जेक्टिव क्या है, हमारे हाइपोथेसिस क्या है, उसी में हमारा डेटा का कलेक्शन के टूल्स क्या रहेंगे, उसकी टेक्निक्स क्या रहेंगी, डेटा को हम कैसे एनालाइज करेंगे, अपने हाइपोथेसिस को हम कैसे टेस्ट करेंगे, उसी तरह से हमारा जो सैम्पलिंग है वो क्या रहेगा, सैम्पलिंग डिजाइन क्या रहेगा, सैम्पलिंग टेक्निक क्या रहेगी। इसी तरह से सेम वे में हम रिसर्च डिजाइन, कि रिसर्च डिजाइन हमारा कौन सा डिजाइन हमारी रिसर्च में एप्लीकेबल होगा या अप्लाई होगा, दैट ऑल्सो मस्ट बी वेरी वेरी क्लियर इन दी रिसर्च। नाउ अगर हम रिसर्च डिजाइन के पर्पस के बेसिस पर बात करें, वैसे तो बहुत सारे रिसर्च डिजाइन हमारे रहते हैं। कहीं हम अगर इम्पैक्ट स्टडी करते हैं तो उसके लिए रिसर्च डिजाइन अलग होता है, कहीं पर अगर हम एक्शन रिसर्च करते हैं तो उसके लिए डिजाइन अलग होता है। तो पर्पस ऑफ स्टडी के हिसाब से हमारे जो बेसिक डिजाइन है सोशल साइंस रिसर्च में, दीज डिजाइंस आर ऑफ 3 टाइप्स। नंबर 1, एक्सप्लोरेटरी स्टडी, इसका मतलब होता है एक्सप्लोरेशन। अब एक्सप्लोरेटरी स्टडी की अगर बात की जाए पार्टिसिपेंट्स, तो एक्सप्लोरेटरी स्टडी का मतलब होता है कि उससे पहले उस फील्ड में कोई स्टडी नहीं हुई हो, एंड यू आर डूइंग द फ्रेश रिसर्च, फर्स्ट रिसर्च इन दैट पर्टिकुलर फील्ड, जिसके फिनोमिना के बारे में आपका लिटरेचर और आपके पास बहुत स्टडीज अवेलेबल है ही नहीं। उस तरह की स्टडीज हमारी एक्सप्लोरेटरी स्टडीज कहलाती हैं। The purpose of exploratory study is to formulate a problem for more precise investigation or to develop hypothesis. इस स्टडी का मतलब सीधा सीधा होता है कि हमारी जो प्रॉब्लम है उसको और बेहतर तरीके से हम इन्वेस्टिगेट कर सकें और उससे हाइपोथेसिस डेवलप कर सकें। जैसे अभी हाइपोथेसिस में देखा था आपने सोर्सेज में, थ्योरीज से, तो वैसे ही अब आज की तारीख में, in present world, if you say that this phenomena is or this phenomena has not been studied,
तो ऐसा शायद ही कोई फिनोमेना आपको मिले जिसपे कोई रिसर्च नहीं हुई हो। हमारी इग्नोरेंस या हमारी अनअवेयरनेस उसके बारे में हो सकती, लेकिन ऐसा कोई फिनोमेना नहीं है। जैसे अभी अगर लेटेस्ट आप बात करें, कोविड-19, आज की डेट में अगर आप कोविड-19 पर देखें तो एन नंबर ऑफ स्टडीज यू वुड फाइंड कि कोविड-19 का इम्पैक्ट क्या रहा, उसके इम्पैक्ट किन किन लोगों पर अधिक रहे, उसके इम्पैक्ट के जो जो कोविड पोस्ट कोविड इम्पैक्ट हैं, पोस्ट कोविड कोविड जो हमारे चेंजेस हैं उसके बारे में देखा जाए, पोस्ट कोविड जो लोगों की साइकोलॉजिकल सिचुएशन है उसके क्या रहे। तो ऐसी स्टडी जो कि उससे पहले नहीं हुई हो, अब कोविड-19 से पहले कोविड-19 पर कोई स्टडी नहीं थी, तो इस तरह की स्टडी अब स्टडीज होने के बाद हमारे पास बहुत सारी चीजें उसके बारे में क्लियर हो गई कि कोविड-19 की जो जिन लोगों को इसने अफेक्ट किया, उनकी साइकोलॉजिकल स्थिति क्या थी, उनकी फिजियोलॉजिकल स्थिति क्या थी, उन चीजों का हमारे पास एक अब बेस आ गया, जिसको हम उसने हमारी प्रॉब्लम को एक प्रिसाइज वे में इन्वेस्टिगेट कर दिया। जिससे जब तक ये स्टडी नहीं हुई थी तब तक हमारे लिए ये एक एक्सप्लोरेटरी स्टडी थी। जैसे पहले अगर इसमें मैंने एक एग्जांपल दिया कि जब एचआईवी और एड्स पर उन पेशेंट के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं थी, तो उस फील्ड की स्टडी जो पहली पहली स्टडीज हुई, उन स्टडीज को हम एक्सप्लोरेटरी स्टडीज कहेंगे। ठीक है, एक्सप्लोरेटरी का मतलब ही होता है कि किसी चीज को एक्सप्लोर करना विच हैज नॉट बीन एक्सप्लोर्ड अर्लियर। हम उसके लिए फर्दर अब एक्सप्लोरेशन पर जाएंगे, उससे हम अपनी प्रॉब्लम को बेहतर से बेहतर तरीके से इन्वेस्टिगेट करके और वहीं से हम हाइपोथेसिस ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कोविड-19 की कोई अगर एक एक्सप्लोरेटरी स्टडी आप देखें तो उस स्टडी के बेसिस पर आज कहा जा सकता है द साइकोलॉजिकल सिचुएशन ऑफ द कोविड पॉजिटिव पेशेंट वाज लाइक दिस और वाज लाइक दैट। वो कब आया? जब हमने उस पर स्टडीज की, उसके डेटा से हमने अपनी फाइंडिंग्स को निकाला। तो या कोविड-19 की जो कोविड-19 का जो असर था वो मार्केट पर क्या रहा, उससे हम बता सकते हैं कि मार्केट पर इन एरियाज में उसका इम्पैक्ट निगेटिव था, इन एरियाज में उनका इम्पैक्ट पॉजिटिव था। जैसे बहुत सारे एरियाज थे जहां अगर आप मेडिकल साइंस की बात करें तो उसने बहुत ज्यादा इसमें कहना चाहिए वो बिजनेस उनका बूम हुआ, जबकि और दूसरे बिजनेस की बात करें तो बहुत ज्यादा डाउन हुआ। इन सारी चीजों को हम कहेंगे कि ये हमारी स्टडीज एक्सप्लोरेटरी स्टडी थी। उसके बाद बहुत ज्यादा इसकी डिटेल को नहीं, हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टडी की। इसका नेक्स्ट स्लाइड ले लीजिए। यस, descriptive studies, as name suggests, describe as accurately as possible the characteristics of a group of people or a community. अब ये एक्सप्लोरेशन से हम आगे की बात करते हैं, यानी कि अब फिनोमिना हमारे बारे में, अब फिनोमिना के बारे में हम जानते हैं, हम उसको फर्दर और क्लियर डिस्क्राइब करना चाहते हैं और डिफाइन करना चाहते हैं। ये डिजाइन हमारा कहलाता है डिस्क्रिप्टिव स्टडी डिजाइन। A researcher who is interested in studying group of a community or a people of community, their age, their sex composition, caste-wise distribution, affiliation to religion, level of education, occupational status, design his study as descriptive study. Means ये सारी चीजें हमें कहाँ जरूरत आती हैं? हम इसमें सीधा सीधा जो फिनोमिना है उसको और एक्यूरेटली, जितना पॉसिबल हो सकता है उतना एक्यूरेटली उसको हम फर्दर डिफाइन कर देते हैं। अब उसमें कोई भी फिनोमिना हम उसके ले सकते हैं, जैसे इसमें बताया कि किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी में उनका रिलीजियस फेथ क्या है, उस फेथ के आधार पर हम उसमें क्या क्या उनके और डायमेंशन को स्टडी कर सकते हैं, या वो किस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस पर्टिकुलर चीज को प्रीफर करते हैं। ये सिंपली है कि जो फिनोमिना हमारे पास अवेलेबल है, जिस फिनोमिना को हम स्टडी करते हैं, उसको और डिफाइन करने की और उसको और डिस्क्राइब करने की आवश्यकता इसमें होती है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया जाता है इसमें कि आप देखें कि आने वाले सेंसस में कितने परसेंट ऑफ पॉपुलेशन जो है, जो दिव्यांग पॉपुलेशन, जैसे इसमें बताया गया कि उसको फाइनेंशियल हेल्प की या फाइनेंशियल असिस्टेंस की
आवश्यकता होगी? What will be the size of the दिव्यांग population who will need financial assistance in the next financial plan? इसका मतलब दिव्यांग चीजें हमारे दिव्यांग किस कैटेगरी में आते हैं, दिव्यांग किनको कहा जाता है, ये तो क्लियर है, लेकिन हम इसको आगे और डिस्क्राइब करते हैं कि आने वाले 10 सालों में या आने वाले 5 सालों में दिव्यांग पॉपुलेशन कितनी होगी जिसको के फाइनेंशियल असिस्टेंस की आवश्यकता होगी, या कितने लोग इसमें ऐसे होंगे कि आने वाले 2027 के या 2024 के इलेक्शन में वोटर लिस्ट में नए वोटर्स के रूप में शामिल हो जाएंगे। ये सारी चीजें हम इसमें डिस्क्राइब कर देते हैं कि इनके उस आधार पर कहा जा सकता है, या 2031 के सेंसस में इंडिया की पॉपुलेशन कितनी होगी। तो चीजें वही हैं, इनको हम फर्दर डिस्क्राइब करने की बात और करते हैं, ठीक है। नाउ कमिंग टू दी एक्सप्लेनेटरी स्टडी। एक्सप्लेनेटरी स्टडी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि इससे पहले जैसे हम डिस्क्रिप्टिव स्टडी की बात कर रहे हैं कि फिनोमिना को ये डिस्क्राइब करती है, एक्सप्लेनेटरी स्टडी उसी डिस्क्रिप्टिव स्टडी का एक फर्दर एक्सटेंशन है। इसमें जैसे कहा जाता है व्हेन वी हैव अ प्रॉब्लम दैट इज ऑलरेडी नोन, वी हैव अ डिस्क्रिप्शन ऑफ इट, we may like to know why things are the way they are. The purpose of explanatory research studies is to explain why. मेन चीज इसमें होती कि अभी तक तो हम फिनोमिना को डिस्क्राइब कर रहे थे कि इतने परसेंटेज ऑफ द दिव्यांग पॉपुलेशन विल नीड फाइनेंशियल असिस्टेंस इन नेक्स्ट 5 ईयर प्लान से फॉर एग्जांपल, लेकिन इसमें हम एक्सप्लेन करते हैं कि वो क्यों, इस पर हम ज्यादा जोर देते हैं। जैसे इसमें कहा गया व्हाई, एक्सप्लेन व्हाई। जैसे बताया गया कि 30% ऑफ द एल्डर्स आर बीइंग अब्यूज्ड बाय देयर चिल्ड्रन। से फॉर एग्जांपल वन फाइंडिंग ऑफ द स्टडी सेज 30% जो वृद्ध हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो अपने बच्चों के द्वारा उनका एक्सप्लॉयटेशन किया जा रहा है। एक वेस्टर्न स्टडी थी जिसमें बताया कि 30 से 35% इस जो हमारे एल्डर्स हैं वो अपने बच्चों के द्वारा या चिल्ड्रंस के द्वारा अब्यूज किए जाते हैं। तो यहां तक तो ये फिनोमेना डिस्क्राइब हो गया कि 30% पेरेंट्स, 30% एल्डर्स अपने चिल्ड्रन के द्वारा, अपने बच्चों के द्वारा एक्सप्लॉइट किए जा रहे हैं। लेकिन इस पे अगर क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाए क्यों, इस स्टडी डिजाइन को हम कहते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टडी डिजाइन। अब वो एक्सप्लेन करते हैं उसमें कि क्यों। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में आप देखें तो इंडिविजुअलिस्टिक सोसाइटी होती है, दे बिलीव इन इंडिविजुअलिस्टिक नेचर ऑफ सोसाइटी, इंडिविजुअलिस्टिक नेचर ऑफ फैमिली, न्यूक्लियर फैमिलीज। तो वहां पर पता लगाया कि बचपन में जब बच्चों को बहुत ज्यादा केयर नहीं दी जाती, अगर बच्चे रो रहे हैं तो वहां बच्चों को शांत नहीं किया जाता, वहां बच्चों को खामोश नहीं किया जाता, चुप, उनको जो बच्चे का बचपन जो होता है उसको प्रॉपर नहीं ट्रीट किया जाता है। तो उस कंडीशन में उन्हीं बच्चों का नेक्स्ट जो, जब वो अपने पैरों पर खड़े होते हैं या जब वो अपने पेरेंट्स के प्रति जो उनका एक लगाव होता है वो उतना नहीं होता जितना कि ज्वाइंट फैमिली सिस्टम में पाया जाता है। ये एक रीजन हुआ, और बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। यानी कि जो हम रीजन देख रहे हैं उनको बताना कि ये रीजन इसलिए, ये जो फिनोमिना है उसकी एक मुख्य वजह या मुख्य कारण ये रहा, इसको हम कहते हैं एक्सप्लेनेटरी स्टडी डिजाइन। तो ये कुल मिलाकर के अगर हम कहें कि जो मेजर रिसर्च डिजाइन हैं वो यही 3 है। बाकी तो इसमें फिर एक्शन स्टडी डिजाइन होती है कि जब हम एक्शन ओरिएंटेड वर्क को देखते हैं। कभी होती है इम्पैक्ट स्टडी डिजाइन, जिसमें हम किसी प्रोजेक्ट का, किसी स्टडी का इम्पैक्ट असेस करते हैं, तो वो हमारा इम्पैक्ट स्टडी डिजाइन होता है। कुछ फिर उसके बाद होते हैं कि वो हम जो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप जिसमें डिजाइन में बात की जाती। तो ये बहुत सारे रिसर्च डिजाइन हैं, लेकिन सोशल साइंसेज रिसर्च में बेसिकली ये तीन डिजाइन हैं, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव और एक्सप्लेनेटरी। बाकी अब इसके साथ अगर आप कभी टाइम मिलेगा तो आपके साथ बात की जाएगी। चूंकि इतना टाइम के हिसाब से देखते हुए मैंने समझता कि इसको बहुत ज्यादा लेंदी यहाँ से किया जा सकता था, तो ये एक छोटा मोटा मेरी तरफ से आपके लिए कोशिश रही। बाकी अगर आपका जो इसमें
एक्सपर्ट कोई कमेंट है, सजेशन है, तो आप उसके लिए आई वेलकम यू ऑल. रफीक सर. Yes, yes, yes. Yes. If there is any question, you can ask. If there is any problem, any questions, you can ask from our resource person, Dr. Mohammad Hussain Saab from Agra University. I think there is no any questions answer. Madhu Thakur and Nawaz and Hema Kumari, Himanshu Verma, thank you, sir. Navanita Das. If there is any questions, you can ask. Otherwise, we end it. No question. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay. Thank you, everyone. Thank you, sir, for the session. Okay, ma'am. Rafiq bhai, I'm very sorry that we had some problem because of the network issue. So this was, I can say, it created little bit disturbance to the participants. So next time, if we will have another chance, hopefully this will not repeat. Okay, sir. There is a no problem, sir. There is a no problem. It may be happen sometimes. This is a actually this is the technical things. Okay, I think, sir. Thank you, Hussain sir, for uh, giving a wonderful session, lectures, and enlightened us about the exactly what is the research design we can use and hypothesis and research. You mentioned here the research design and hypothesis. We can understand exactly what is the hypothesis and what is the research design very shortly and very बहुत ही अच्छी तरीके से इसको समझ में आया लोगों के और बहुत सिंपल तरीके से योर एक्सप्लेनेशन इज वेरी वेरी सिंपली है ना तो इट इज़ वेरी गुड सेशंस एंड आई रिक्वेस्ट ओके सर एंड if there is any questions you can ask I request all participants if there is any questions you can ask otherwise we ended it है ना Once again, sir, I thank you for giving me this opportunity, and I'm very thankful from the core of my heart. And hopefully, we will continue in the same way in future as well. yes sir yes sir yes sir okay okay thank you very much everyone Thank you. we Thank ended you the so much. session. We will see you tomorrow on the next topic on AI tools and AI tools on research, no? On contemporary research. Okay, thank you very much, sir. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you.